ہلو. ہاں مفتی جی. ہاں مفتی جی السلام علیکم. السلام. کون؟ ارے دوست ہوں آپ کا. ہو کون؟ کیا نام ہے؟ فقط خان. ہاں فقط بھائی. فقط بھائی. ہاں کس کا فقط بھائی؟ فقط نام ہے. فقط فقط. فقط. ہاں فقط. کون سے مطلب کا ہے؟ اہل الحدیث. اہل الحدیث. اہل الحدیث کا مطلب؟ حدیث والا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم کو حدیث والے بنو. آپ سے رسول اللہ نے کہا کہ اہل حدیث بنو. بتائیے ذرا ایک حدیث پیش کیجیے. جی جی پیش کیجیے نا حدیث. میں آپ لوگوں کو کیسے ہے وہ حدیث ذرا پڑھو. حدیث میں پڑھوں؟ اہل الحدیث آپ ہو. اہل حدیث بننے کا رسول اللہ نے آپ سے کہا. حدیث میں پڑھوں؟ یاد ہی ہے نا. ہاں آپ کو حدیث نہیں یاد ہے؟ ارے اہل الحدیث آپ ہو. حدیث والے آپ ہو. نبی نے آپ سے کہا اہل حدیث بنو. حدیث میں پڑھوں؟ ترکت فیکم امرین. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ راوی تو آپ جو سرچ کر لیجیے نیٹ پہ مل جائے گا. میں کیوں نیٹ پہ سرچ کروں؟ تم کسی کو اپنا ابا کہو اور اس کی ڈیٹیل میں نکالوں گا کیا؟ تو تم جس کو ابا کہہ رہے ہو اس کے ابا ہونے کی دلیل تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ میرے پاس؟ میں سرچ کر کے بتا دوں آپ راوی کون ہے. تو صحابہ نیٹ سے سرچ کرتے تھے. ارے تو ابھی نیٹ سے سرچ کرنا کس کی سنت ہے بھائی؟ یہ تو کیا نام ہے تکنیکی چیزیں ہیں. کیا ہے یہ سب کیا نام ہے ذرائع ہیں. تو ذرائع ہیں. تو ان ذرائع سے صحابہ نے حدیث سیکھی یا صرف تلمس کیا رسول اللہ کے سامنے اور اس طرح حدیث لی ہے؟ ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات ہے؟ تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ تم اہل الحدیث ہو تو تمہارے مذہب پر دلیل کون سی ہے حدیث؟ تم کو حدیث کے آدھے ادھورے الفاظ یاد ہے. کتاب اللہ و سنت رسول. تو سنت رسولی ہے نا. تو حدیث رسولی کہاں ہے اس میں؟ ارے تو سنت رسولی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے بتاؤ. حدیث رسولی. کس نے یہ کہاں لکھا ہے؟ سنت اور حدیث ایک چیز ہے. ذرا اس پر ایک حدیث پیش کرنا. تو حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ تو تم بتاؤ نا کیا فرق ہے. نہیں تم فرق سمجھتے ہو تو ارے بتاؤ. تم لفظ پڑھ رہے ہو سنت کا اور ترجمہ کر رہے ہو حدیث کا. ہمارے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز کا. تمہارے نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ تم کوئی ولی اللہ ہو, تم پر کوئی وحی اترتی ہے, جبریل تمہارے پاس آتے ہیں, تمہارے نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے نزدیک کی بات کرو. ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے سنت اور حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور حدیث ایک چیز کو بتایا ہے. میں نے آپ سے اہل الحدیث ہونے کی دلیل مانگی, اہل السنہ ہونے کی دلیل نہیں مانگی ہے. میری بات سن لو پہلے مفتی صاحب. پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے. وہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ رسول اللہ نے کہا دونوں کو ایک کہا ہے. فرق کیا ہے؟ جہاں جہاں لفظ آیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من تمسک بسنتی عند فساد امتی, یہ سارے الفاظ تو سنت کے آئے ہیں, حدیث کا تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا. اچھا چلو مجھے تم حدیث کا معنی بتا دو. ہاں لفظ حدیث کا مطلب بتا دو آپ. حدیث کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال, اسی کو کیا نام اور تقریرات کو کیا نام ہے حدیث اور فقہ کہا جاتا ہے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اصول کی کتابوں آپ کو. کون سی کتاب؟ کتاب کا نام بتاؤ نا. ارے بھائی اصول کی کوئی بھی کتاب, آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے. عجیب بات ہے, یہ اصول حدیث کی کتاب کو نبی نے ترتیب دیا ہے کہ اللہ نے ترتیب دیا ہے کہ وہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے تو تقلید ہو گئی؟ نہیں, علماء نے دیا ہے. تقلید کا مطلب آپ. ارے بھائی تقلید کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا. اب علماء اصولیین نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث کا مطلب ہے اور آپ مان رہے ہو, تو تقلید کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے تقلید کا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم سمجھتے ہیں تقلید کے معنی کہ تم سمجھتے میں دین کے معاملے میں, ٹھیک ہے, دینی مسائل میں بغیر دلیل کے کسی بات کو, کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا ہے تقلید. برابر, ٹھیک ہے, تعریف کی نا آپ نے. اور یہ اصول حدیث جو ہے یہ دین میں نہیں ہے, دین تک پہنچنے کے ذریعہ. ارے دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے تب تو دین تک پہنچے گا نا. نہیں, اصول جو ہے دین تھوڑی نہ ہے. اصول دین نہیں ہوتا ہے, اصول ذریعہ ہے دین تک پہنچنے کے لیے. ارے یہ دین نہیں ہے حدیث. حدیث تو دین ہے, اس میں کوئی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے آپ لوگ یہ طے کرتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے. اور شیخ اصول حدیث جو کون سا شیخ؟ ملک شیخ, مینگو شیخ, کون سا شیخ؟ دین تک پہنچنے کے شیخ بڑی شین والا. ہاں بڑی شین سے ہی میں بھی بول رہا ہوں نا, اس کو بھی وہ بڑی شین سے ہی آتا ہے شیخ. اچھا یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہونے والا تھا, آپ یہ کب ہوگا؟ کبھی
खैरात पे हमारा और आपका मुकाबला होने वाला था, ये कब होगा? तो अभी कर लीजिए ना खैरात पे। हाँ खैरात के लिए तो अभी कर लीजिए, लेकिन पहले आपने अभी तक यही नहीं बताया कि आप अहलुल हदीस हैं, तो कौन सी हदीस से आप दलील लेकर आते हैं? आप हदीस पढ़ रहे हैं सुन्नत वाली और इस्तिदलाल कर रहे हैं हदीस पर। इतने बड़े तो गदहुल लजी हैं आप, चीज है भाई। इतने बड़े चूटियम सरफरेट द ग्रेट इंटरनेशनल हो आप। देखो लाइन पे आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो। नहीं लाइन पे नहीं आ रहा हूँ, असल में तुम जैसे दुश्मनाने खुदा व रसूल से मैं ऐसी बात करता हूँ। अब जो है, अब क्या है, धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हो। आपने अभी तक हदीस क्यों नहीं पढ़ी जिससे ये साबित होता है कि नबी ने अहलुल हदीस बनने का हुक्म दिया हो? चचा अरे मैं तेरा ना चचा हूँ ना भाई, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मुझे कोई इलाका नहीं होता। पहले अहलुल हदीस होने की हदीस पढ़ो। पहले बात सुनो यार, आपने कहा ना आप अहलुल हदीस हो। हाँ तो हूँ ना भाई। हाँ तो फिर हदीस पढ़ो ना जिसमें ये लिखा हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को अहलुल हदीस बनने के लिए कहा हो। अरे भाई हदीस पे अमल करने के लिए कहा कि नहीं कहा? तो कहाँ कहा बताओ ना। हाँ एक हदीस पेश करो जिसमें लिखा हो कि हदीस पे चलो। ये पढ़ के बताना, तरक सिकमम रही। हाँ वो मुझे मालूम है, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूँ। किताब अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहले अल्लाह की किताब है, तो बाद में वो सुन्नत रसूलिल्लाह है ना, रसूलिल्लाह की सुन्नत। तो तुम तो हदीस कह रहे हो, तो उसी को सुन्नत ही को हदीस कहा जाता है मेरे भाई। कहाँ लिखा है सुन्नत को हदीस कहा जाता है? इस पर एक हदीस पेश करो ना यार, अहले हदीस हो तो। उलमा के अक़वाल क्यों पेश कर रहे हो? उलमा के अक़वाल आखिर कैसे आप समझेंगे कि हदीस और सुन्नत क्या? अरे आपका दावा क्या है कि अहलुल हदीस किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह पे चलने वाली कौम है, वो भी सही हदीस पर, ज़ईफ़ हदीस पर नहीं। हेलो, बात समझने, हाँ बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो बात ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जब तक पूरी शरह वो गुफ्त के साथ में बात समझ में नहीं आएंगी तो कैसे समझेंगे भैया? किरात पर मुकाबला करने की हाँ बोलो। समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप बरेली हो टनाटन। अरे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन बरेलवी हूँ, हनफीयुल मज़हब हूँ, सब हूँ। आप सुन्नत और हदीस को एक कह रहे हो, ऐसी कौन से हदीस में लिखा हदीस सुन्नत एक है? बात समझाओ मुझे, ये टनाटन का मतलब क्या होता है? ये तो बात की बात है ना। पहले तुमने अहलुल हदीस होने का दावा किया, मुझे मैं टनाटन खनाखन सब बता दूंगा। बास बरेली क्या है, राय बरेली कौन सी है, आला हजरत का डंडा कैसा है, सब बता दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि अहलुल हदीस होने की हदीस है कौन सी, और जो हदीस तुमने पढ़ी वो सुन्नत किससे मुताल्लिक है? तो नबी ने फरमाया कि पहले अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत पे चलो। तुम सुन्नत और हदीस को एक चीज कह रहे हो। सुन्नत और हदीस में अगर आप मुझे फर्क दिखा दो, ठीक है? अरे फर्क दिखाना तुम्हारा काम है कि हमारा काम? तुम हदीस का लफ्ज ही नहीं दिखा रहे हो। भाई देखिए ऐसा, बुखारी शरीफ का क्या नाम है? पहले आप मुझे बुखारी शरीफ का नाम बताओ। बुखारी का नाम मैं बताऊंगा, तुम बताओगे? तुम मुझे बुखारी का पूरा नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम अहले हदीस हो। हाँ अब ठीक है। क्या हुआ? सही क्या 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 बात आप बोले हो ना कि बुखारी का सही नाम बता दो। हाँ बताओ। तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे हदीस। बुखारी का नाम बोल रहा हूँ, बताओ तो। क्या क्या? हेलो, हाँ अब क्या हो गया? नहीं आराम आराम से बोलो, एकदम राजधानी एक्सप्रेस नहीं, तरावी नहीं पढ़ना, यालामुन तालामुन यालामुन तालामुन नहीं करना। अब देखो पढ़ दिया एक बार, अब दोबारा मत बोलो। सुन तो कोई आकाशवाणी हो, एक ही बार रिलीज होगा, दूसरी बार न्यूज नहीं आएगी। अलजामिया अस्सही, अलजामिया अस्सही अलजामिया अस्सही, अलजामिया दोनों मुअर्रब बिल लाम है क्या? अलजामिया अस्सही अलमुस्नद। अरे बेवकूफ, एक इसमें नकेरा है, एक मारफा है, दोनों में अलिफ लाम है। जरा देख लेना बुखारी उठाकर तो, अलजामिया अस्सही। अरे तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग अगर अहले हदीस मौलवी सुनेंगे तो तुम पर थूकेंगे कि हमारे कैसे कैसे चोरा चमार लोग बरेलवी मौलवियों के मुंह लगते हैं। अलजामे अस्सही है उसका नाम। हाँ तुमने कहा ना अलजामे अस्सही। हाँ तो अलजामे तो कहाँ हो? अलजामे अस्सही अलमुस्नद अलमुख्तसर सब गलत बोल रहे हो तुम। और सही है, क्या नाम है, सब जो मैं बोला हूँ जो सही परफेक्ट बोला हूँ। और आपने कहा था कि अगर बुखारी का नाम बता दो तो मैं अहले हदीस मान लूंगा। अभी तुमने नाम ही नहीं बोला बुखारी का पूरा, और पूरा के पूरा गलत बोला है तुमने। अरे झूठ मत बोलो यार एकदम। अरे तुम्हारी रिकॉर्डिंग अभी अहले हदीस मौलवियों के पास जाएंगी, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो ठीक है, निकाल भेजो। तो तुम्हारे मौलवी इतने बड़े घामड़ है कि खुद तो उनको कुछ आता नहीं है, झापक झुआ डाला रख लेते हैं नाक के नीचे तक, और तुम जैसे बेवकूफों को छोड़ देते हैं इंटरनेट पर। अलजामी अस्सही नाम है उसका। सब क्या है बताओ, आप ही सही बताओ। पक्का बोलो, अलजामे अस्सही है? हाँ आप बोलो। अच्छा बुखारी है तुम्हारे सामने, जरा खोलो तो उसको। सुनो हाँ बुखारी शरीफ है आपके सामने? बुखारी शरीफ मेरे पास नहीं है भाई। हाँ जो है तो किससे नाम सुन लिए थे? कहीं मेरी तकरीर में तो नहीं सुन लिए थे? मैं सुना हूँ बस ये कि ऐसे नाम है। किससे सुने हो? अब आप बताओ।
अच्छा, आपने तहकीक क्यों नहीं की? सुना तो सुनने के बाद आपने मान कैसे लिया कि यही नाम है? आप किसी की भी तकलीद करते हो, इससे बेहतर है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप जो है ना, नहीं, बुखारी का सही नाम बोलो तुम आज। बोला तो तुम्हारी आप बख्शिश बोलो इसी ना पर है क्या आज। उसमें। ठीक है, तो आप बोलो कि मतलब उसमें गलत क्या है। आप 100% बताऊंगा मैं गलत क्या है, हाँ 100% बताऊंगा गलत क्या है, लेकिन ये बताओ बताओ ना। कि अरबी में दोनों मुअर्रब बिल्लाम आता है या एक मारफा आता है या एक नकेरा आता है या दोनों मारफा आता है? देखो, मारफा नकेरा समझता है? हाँ मारफा और नकेरा समझता है आपको? नकीरा क्या होता है? शाबाश, अभी तो तुम बड़ी उसूल की बात कर रहे हो। सऊदीया जाकर भोजपुरी अरबी सीख कर आते हो, हाँ दलिंदरो, और इसी से हदीस कुरान समझोगे तुम लोग, घामड़ो। मैं बुखारी का नाम सुनो, मैं आपको बुखारी का नाम मतलब अच्छा, लगता मुझे ख्याल से मिल गया कहीं से। नहीं कह रहे थे कि मुझे किताब से देखे, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। किताब से देख के एक मिनट। हाँ, किताब का नाम पूरा मैं आपको दे करके बताऊँ। तो बुखारी का नाम बताने में इतना टाइम लग रहा था, तुम्हारा शरीर नसब पूछ लिया, तुम किन किन लाइनों की नस्ल से होकर पैदा हुए हो। सुनो तो मुझे तो लगता है कि तुम जहन्नम में पहुंचकर भी नहीं बता पाओगे। सुनो देखो, अलजामे पूरा सुनो, अलजामे सही अलमुसनद। अरे यार, अलजामे सही नहीं है वो। अरे भाई, अलजामे है। अरे सुनो, उर्दू में ख्वाजा लिखते हैं ना, ख्वाजा, उसमें वाव लिखते हैं, वाव पढ़ा नहीं जाता है। ज़कात में वाव आता है ना, तो उसको ज़कावात पढ़ते हो कि ज़कात पढ़ते हो? तो इससे क्या लेना देना कि इसमें अलजामे का जवाब नहीं पढ़ा जाएगा? अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चुगतुल बुखारा, बाज अल्फाज लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं। सुनो मेरी बात सुन लो पहले। आप कह रहे थे कि मुझे बुखारी का नाम पूरा सुना दो, तो मैं चलो सुना दो भैया, ऐसे ही सुना दो। चलो अब बताया ना एक बार, अलजामे सही अलमुसनद अलमुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामी। ये पूरा नाम सही बताया आपने? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम गलत नाम बताया आपने। इसमें बहुत बड़ी डंडी मारी है, धांधली की है आपने। क्या गलत है उसमें? समझ में आई बात? इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, अहलुल हदीस बनना नाको चने चबाना है। अहलुल हदीस हिजरी 220 पर खत्म हो गए, जिनको 10 लाख हदीसें मां सनदो मतन की याद होती थी, 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ, वो होते थे अहलुल हदीस। तुम जैसे घामरों को बाप दादा का नाम याद नहीं है, हाँ, और साले चले हो अहले हदीस बनने के लिए। हदीस पढ़ रहे हो सुन्नत वाली और कह रहे हो कि इसमें हदीस पे चलने का हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियाते शहीद। जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पे चलेगा उसे 100 शहीदों का सवाब है। सुन्नत अलग चीज है, हदीस अलग चीज है। हर सुन्नत हदीस है, हर हदीस सुन्नत नहीं है। अगर हर हदीस पर अमल करते हो तो बुखारी में अलबौलु कायमन बाकायदा एक बाब बांधा हुआ है, खड़े होकर पेशाब करने का। क्यों नहीं करते हो? खड़े होकर पेशाब क्यों नहीं करते हो? ये हदीस बुखारी में है कि नहीं है? मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, तुम नाम ही गलत बोल रहे हो बुखारी का, तुम्हारी बात क्या सुनो? फकत खान नाम रखा है तुमने, अपना नाम छुपाते हो, अपनी असलियत छुपाते हो, पहचान छुपाते हो, मुनाजरा करने चले आए हो। अबे तुमको तो अभी अहले हदीस साबित करने में ही तुमको जो ना जिंदगी निकल जाएगी। फातिहा खल्फल इमाम पे बाद में बहस करना। अच्छा ये बताओ कि बुखारी शरीफ जो है ये सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? तुम्हें ये नहीं पता काहे की किताब है? मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अच्छा, आप मुझे जो पूछ रहे हैं तो 2 हैसियत से पूछ रहे होंगे, या तो मुमतहिन की हैसियत से, या तो मुतालिम की, या तो तालिब इल्म की हैसियत से। तो कौन सी हैसियत से पूछ रहे हो? आप जो भी समझ के जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए। आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हो? मैं आपको मुनाजिर की हैसियत से पूछ रहा हूँ आपसे। अरे मुनाजिर, तुम मुनाजिर थोड़ी हो कि जो मैं तुमसे मुनाजरा करूं। तुम तो मजहूले मुतलक हो, जहले मुरक्कब हो, अखबसुन्नास हो, बेदाल के बुदम हो, जोगतुल बुखारा हो। तुमसे क्या मुनाजरा होगा? मैंने तो आपका मखरज चेक करने के लिए आपको फोन किया था कि आप जो काफ जो नीचे से निकालते हो ऊपर से। अरे मेरा काफ जहाँ से निकलना चाहिए उसके जो खरूज की जगह है वहीं से निकलता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? बुखारी सुन्नत की किताब है क्या? किस हैसियत से पूछ रहे हैं? जो है मुफ्ती साहब जो है, आप मतलब मुफ्ती साहब जो काफ जो नीचे से निकाल लेते हो, मैं कहा जरा पूछ। अरे वो तो आप लोगों का सब नीचे से ही निकलता है, बाज़ औकात पीछे से भी आपकी पीली देखी गई है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे भाई मेरी बात तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको ये जानना है बुखारी सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? हाँ ये बताओ। जानना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए ना। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना फकत खान, हाँ, तो बराए इम्तिहान पूछता हूँ।
हाँ तो मैं भी बराए जो है क्या नाम है इम्तिहान ही पूछ रहा हूँ। तो बराए इम्तिहान पूछने के लिए आपका इल्म मेरे बराबर है क्या? हाँ आपका इल्म मेरे बराबर है। चलिए सूरह फातिहा सुना दीजिए आप मखारिज की रियायत करते हुए। देखो अब पहले अब सवाल, अरे यार एक जाहिल एक मुफ्ती का कैसे इम्तिहान लेगा? इम्तिहान तो वो लेता है जिसका इल्म वसी होता है, वो कमतर इल्म वाले से इम्तिहान लेता है। तो आप मुफ्ती हो? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ये बताओ कि आपने ये कैसे कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? आपके पास कितना इल्म है? मैं तो पहले कहा था कि आप मुझे एक हदीस पूरी सनदो मतन के साथ में अरबी में सुना दीजिए। आप अहले हदीस होने के लिए तो 1 लाख हदीस याद होनी चाहिए। आप एक ही हदीस सुना दो, मैं मान लूंगा आप अहले हदीस हो। वो तो मैं सुना दूंगा, कोई मसला नहीं है। कब सुनाओगे? आप ये बताइए, जब चाहो जन्नत से किसका पहले जाने के बाद? मैंने वो तो सुनाने को तो मैं अभी सुना सकता हूँ, ऐसा नहीं सुनाओ ना भाई, सुनाओ। लेकिन पहले ये है कि आप बताओ बुखारी शरीफ जो है ये। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी किताब मैं जुर्ता बता रहा हूँ, बिना देरी करे बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना भाई। तो पहले ये तो बताओ आप मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हो? तालिब इल्म की हैसियत से ना? हाँ तो चलो तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब मैंने बता दिया। क्या बताया? अरे मान लीजिए मैंने बुखारी का तो बता दिया कि बुखारी फिक़ह की किताब है, या हदीस की है, या सुन्नत की है, या मंतिक की है, या कलाम की है, या जफर की है, या जीजात की है, या क़िरात की है, किस फन की किताब है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अब मैं अरे अभी बताऊंगा ना, लेकिन कैसे आप मान लोगे उसको? मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उसको मान लोगे? पहले आप बताओ। आपको खुद पता है बुखारी किस फन की किताब है? मैं पहले आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। अरे मेरे 360 सवाल तो आपके ऊपर कर्जा है, क्या वो आपकी नस्लें मेरा कर्जा चुकाएंगी? अरे आप जो है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैंने बता दिया तो तुम मान लोगे उसको? हाँ तुम मान लोगे उसको? अरे भाई मानने के लायक होगा तो क्यों नहीं मानेंगे? तो आपको कैसे पता ये लायक है या नालायक है? आपको तो खुद पता नहीं। वो तो मैं वजह बताऊंगा बाद में आपको ना। अरे आपके पास इल्म है? अरे बताऊंगा ना। आपको तो बुखारी का नाम ही याद नहीं है। आपको तो बुखारी का, आपने अल जामे अस्सही कहा ना बुखारी का नाम? हाँ हाँ तो उसका नाम बताओ मैं क्या है? लल्ला? हाँ उसका नाम मैं बताऊं लल्ला क्या है? हाँ बता दो लल्ला। उसका नाम अल जामे अस्सही नहीं, अल जामे उस्सही। अल जामे उस्सही क्या नाम है? हाँ हंसो। अब जब ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे फैलेंगी और लोग देखेंगे कि अहले हदीस में कैसे कैसे 30 मार्का होते हैं, जिनको इस्तिंजा का ठेला लेना नहीं आता वो लोग अहले हदीस बने फिर रहे हैं। सुनो मेरी बात, आपको बोलना चाहिए कि आप एराब जाहिर करो, क्या पढ़ना चाहते हो? अरे गनहुल लज़ी कहीं के एराब जाहिर करो। तुम अल जामे अस्सही पढ़ रहे हो, अस्सही का अलिफ लाम पढ़ रहे हो तुम। तुम्हें ये नहीं पता कि मारफा क्या होता है, नकरा क्या होता है। बार जगह अलिफ लाम होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता है। वो तो मैं वो तो अलग अलग आपको समझा। तुम जैसे घामर मेरे पास रोजाना, तुम अकेले नहीं हो। अल मुख्तसर है ना, असल में क्या है ना, आगरा फुल हो गया ना तो लोग मेरे ही पास आते हैं। तुम्हें ये नहीं पता है कि बुखारी का सही नाम क्या, तुम बहस करने चले आए हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अहले हदीस हो तो तुम्हारे मजहब पर कोई हदीस है या नहीं है। ओ फकत खान सुन रहे हो ना?